in ectoderm we have divided in two parts: surface ectoderm and neuroectoderm. Neuroectoderm has a deepening called neural groove. Around the margins of neural groove we have formed neural fold and neural crest. Neural crest will dissociate from this and they will have separate existence, and neural fold will approximate toward each other and it will form neural tube. Neural tube is dividing into three primitive brain vesicles. It is known as prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Prosencephalon divides into two parts: telencephalon and diencephalon. Telencephalon cavity is called lateral ventricle. Cavity of diencephalon is called third ventricle. Cavity of mesencephalon is called cerebral aqueduct, and cavity of rhombencephalon is called fourth ventricle. So we have seen these things. We have also seen three types of flexors: cervical flexor, pontine flexor and cephalic flexor. After this flexor, this will merge into one single piece, and the developing most cranial end, that is telencephalon, it will grow enormously. It will cover up this everything and it will form cerebral cortex. So now we will begin. This is general development. Okay, in the exams, whenever you mention this embryology, you can mention these generalized topics and you can develop the parts accordingly, whatever short note you are writing. And from the margin of this developing rhombencephalon, cranial most margin, two extensions on right and left side, they are called rhombic lip. And this rhombic lip on right and left side will merge together to form cerebellum. So now we will start with individual components. So we will start from spinal cord, then medulla, then pons, then midbrain, then cerebellum, then diencephalon and telencephalon. So we are starting from most caudal part. Okay, we have seen neural crest and its derivatives. So we will straight away jump with the spinal cord. I request all of you to ask your queries during the lecture only. At the end, I am staying for you to solve the queries or any confusion. Do not discuss after the lecture, or if you have a query after the lecture, then make a list and ask in the next lecture directly to me. Do not discuss my queries with somebody else. It will create more confusion to you. Okay, and I will be very much clear in my answers. I will have no faking, nothing to show. Whatever is there, I will be clear with you. So don't leave confusion with you. Whatever question, whatever query you have, immediately expose yourself. एक हिंदी में कहावत होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब आप कुछ पूछने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, लोग आपसे भी बुद्धू होते हैं, उनको इतना भी मालूम नहीं होता है जो क्वेश्चन आपने पूछा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ा सा फंडा तो चाहिए ही, जो उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो जिसको थोड़ा फंडा बना है वही क्वेश्चन कर सकेगा। तो क्वेश्चन आस्किंग इज अ हेल्दी हैबिट ऑफ स्ट्रेस फ्री माइंड। तो आस्क क्वेश्चंस, डिस्कस फ्रीली एंड डोंट हेजिटेट। ठीक है, ये अपना ही घर है। सिर्फ 150 पीपल, 150 भी नहीं होते कभी कभी, तो इसमें आपकी कोई बड़ी इज्जत नहीं चली जाती। तो क्वेश्चन पूछने से तो इज्जत बढ़ती है एक्चुअली। ओके, एनीवेज, you discuss freely. I invite all of you. Now we are going to spinal cord. So remember spinal cord first. It is a thin, slender cord extending from medulla to cauda equina in the vertebral canal. So in the vertebral canal, we know that this is gross picture: anterior median fissure, posterior median septum, ventral gray column, ventral white column, dorsal gray column, dorsal white column,
lateral gray column, lateral white column. These are the simplest terms for spinal cord. If you want to make up something like this, हमारे पास रॉ मटेरियल ये है, that is our neural tube. So all of you remember common words first. So these are the common words. Primitive neural tube differentiates into 3 layers from inside to outside: ependymal layer, mantle layer and marginal layer. You should be clear about the goal and fate of these layers. Ependymal layer is forming ependyma, it will form epithelium and it will contribute in secretion of CSF, secretion and drainage. ठीक है, तो इसका कोई न्यूरोनल फंक्शन नहीं है. But mantle and marginal layer have proper neuronal function. So all the neurons, cell body and axons, they will develop in these two. तो जहाँ पे भी जाओ इन दो नाम को मत भूलो, ठीक है. कुछ भी डेवलप करना हो यहीं से शुरू करो, और आगे कुछ नहीं आता तो ये 2 वर्ड लिख के छोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा. These are the 2 important words, mental layer and marginal layer. ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब में बीच का जो लेयर है दैट इज मेंटल लेयर, बाहर का लेयर है दैट इज मार्जिनल लेयर. अब पूरे CNS को याद करेंगे तो इन द ब्रेन ग्रे मैटर इज आउटसाइड, वाइट मैटर इज इनसाइड, एंड इन द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर इज इनसाइड एंड वाइट मैटर इज आउटसाइड. सिंपल थिंग. तो यहाँ पे मेंटल लेयर जो है दैट इज योर ग्रे मैटर. That means mental layer has cell bodies of neurons. It has cell bodies, capillaries and connective tissue. इसीलिए वो ग्रे दिखता है. तो जो भी पार्ट आप डेवलप करते हैं उसमें दिस इज द की, माइग्रेशन ऑफ मेंटल लेयर एंड माइग्रेशन ऑफ मार्जिनल लेयर, M+M. ये 2 वर्ड से पूरी गेम बनती है. So when mental layer migrates inside marginal, that means layer 2 goes inside layer 3. ठीक है, तो ग्रे मैटर अंदर से निकल के बाहर चला गया. When marginal layer migrates inside mental layer, तो white matter बाहर से आके अंदर आ गया. तो this is the key. ठीक है, ये आप याद रखिए. अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड बनाना है तो मेंटल लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल ग्रुप्स. अब ये न्यूरल ट्यूब है. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अभी हम बना रहे हैं ऐसा स्पाइनल कॉर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सल्कस ऑन द लेटरल वॉल्स. ठीक है, अगर ये एम्ब्रियो है तो यहाँ पे एक्टोडम है, यहाँ पे एंडोडम है, बीच में मीजोडम है, और ये अपना नोटोकॉर्ड है. नोटोकॉर्ड के ऊपर हमारा न्यूरल ट्यूब है. ठीक है, नोटोकॉर्ड की डोर्सल साइड में. सो एट फर्स्ट ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ दिस एपेंडाइमल लेयर देयर इज सल्कस लिमिटन्स फॉर्म्ड. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. सल्कस लिमिटन्स ऑन द लेटरल साइड्स राइट एंड लेफ्ट. It is demarcating functional components. Ventral to sulcus limitans is motor component. Dorsal to sulcus limitans is sensory component. So these are given the name as basal lamina and alar lamina. We have divided the whole tube. ये पूरा जो ट्यूब है वी हैव डिवाइडेड ट्रांसवर्सली बाय सल्कस लिमिटन्स इनटू 2 पार्ट्स, वेंट्रल बेसल लेमिना एंड डोर्सल एलार लेमिना. क्लियर? सो वेंट्रल बेसल लेमिना हैज मोटर फंक्शन, डोर्सल एलार लेमिना हैज सेंसरी फंक्शन. ओके, सो असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स. नाउ दिस sulcus will widen. This antero-posterior widening of the tube happens. ठीक है, पहले सल्कस हॉरिजॉन्टली वाइडन हुआ, फिर पूरी ट्यूब एंटीरो-पोस्टीरियरली वाइडन होगी. अब इसके साथ देयर आर 2 अदर चेंजेस. ये तो हो गई कैविटी की बात. तो कैविटी की बाहर जो मेंटल लेयर है, दिस मेंटल लेयर इज थिकनिंग.
First there is ventral thickening, then there is dorsal thickening. A ventral thickening is round in shape. So in mental layer, when it is thickened, it will detach. This cavity is divided into two parts, cavity का ventral part and cavity का dorsal part. So ventral part of the cavity, it becomes detached and it becomes your central canal, and dorsal part of cavity is buried in between these two. फिर से mental layer differentiates into ventral and dorsal thickening. Ventral thickening is rounded, dorsal thickening is pointed. ठीक है. Now between this dorsal thickening, the dorsal part of central canal is obliterated. ठीक है. तो यहाँ पे बन गया posterior median septum due to obliteration of dorsal half of central cavity, and ventral half of central cavity will become round and it will persist in the form of central canal. Clear? और जो वेंट्रल एंड डोर्सल हॉर्न है, इसके बीच में एक इन्वेजिनेशन होगा, दैट इज फॉर्मिंग एंटीरियर मीडियन फिशर. So this is all about development of spinal cord. Quick recap: neural tube, 3 layers, mental layer thickening, lateral sulcus limitans, then elongation of cavity, then ventral and dorsal part of cavity, ventral part becoming round and going in center, and dorsal part obliterated between two layers of LR lamina. So mental layer has formed your gray horn, ventral gray horn, dorsal gray horn, right and left side. A marginal layer which is outside, it is forming white matter. It means axons of the mental layer, they are going out. Axons of the mental layer going out. They are forming this marginal layer, they are forming tracks or white matter. So you can see most of the things. Now two more changes. General, this is mental layer, okay, this is cell body of neuron, and in the ventral part, ventral gray column, that is marginal layer, axon comes out. Here also axons attach, but on the dorsal column, this is afferent axons. On the ventral column, this is efferent axon. अब एम्ब्रियो में क्या है, ये कलर तो समझने के लिए है, बाकी इट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. सो नाउ यहाँ पे अपने न्यूरल क्रेस्ट सेल आएंगे. ठीक है. रिमेंबर, न्यूरल क्रेस्ट सेल इज फॉर्मिंग ऑल गैंग्लिया. दिस इज डोर्सल रूट गैंग्लियन, एंड समवेयर हियर यू विल हैव autonomic ganglion, sympathetic chain. So these ganglia, they are formed from neural crest cell. So it is pseudo unipolar neuron. So it central process of this neural crest pseudo unipolar neuron will go invaginate inside this marginal layer of spinal cord. Similarly here, this axon of mental layer will go out and it will join our autonomic ganglion. So this will form your ventral and this will form your dorsal root. Root will unite to form trunk, trunk will divide to form ramus. Clear? આવે બરોબર? So this is about development of spinal nerve. ठीक है. आप स्पाइनल नर्व की शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, अचानक आप खुश हो गए, आपको याद आ गया कि ये तो एम्ब्रियो है.
when you can write these 2 points in development of spinal nerve. ये टॉपिक यहाँ दिया नहीं है, but you can make up yourself. ठीक है, in development of spinal nerve you can write 2 points. 1 point, development of ganglion from neural crest and development of mental layer in the spinal cord neural tube, and then extension of the axons in the dorsal horn, dorsal root, and extension of axon in the ventral root. ये दो चीज़ लिख दिया, यहाँ पे ट्रंक बना दिया, फिर उसका रेमस बना दिया, गेम ओवर. सो दैट्स ऑल अबाउट होल स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व. लास्ट में भी कुछ चेंजेस होंगे, जैसे ये अपना लोअर एंड है, तो आपने चौरसिया में या कहीं और पढ़ा होगा कि लेवल डिफरेंस इन द लोअर पार्ट, स्पाइनल नर्व लेवल एंड स्पाइनल कॉर्ड एंडिंग. ये पूरा अपना कोडा इक्वाइना है. व्हाट इज इट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स बिलो L1. अब during development all spinal nerve lie horizontally from the spinal cord. The same vertebral level, same foramen level, spinal nerve and vertebral body, they lie horizontally on the same plane. But when the growth happens, development of vertebral column is faster and more, so spinal cord remains short in the lower part and vertebral column becomes larger. So these spinal nerves will become oblique when they go down, and after L1 all these nerves collect together to form coda equina. ठीक है, तो यहाँ पे lower end of spinal cord which is tapering, pointed, cone shaped, it is known as conus medullaris. And after conus medullaris, a fold of pyometer which is covering spinal cord, it will go down, down, down. This fold of pyometer is called phylum terminale. In collection of spinal cords in the whole lower part is called coda equina. ठीक है, so this diagram you have seen in the neuro lectures. At first these are all horizontals, then it becomes oblique, and then your coda equina is formed. So this is all about positional changes. One more thing you should remember, that is functional component. Whenever the word functional component is described, you have to divide, you have to remember LR and basal lamina. So this is your neural tube, this is sulcus limitans, this is ventral basal lamina, this is dorsal LR lamina, ventral basal lamina. Mental layer divides into two functional columns. These two functional columns, similar to functional columns on the LR lamina. These are the groups of cell bodies of neuron. So nearer to sulcus limitans, these are visceral components. Away from sulcus limitans, these are somatic components. So near to sulcus limitans, visceral, efferent, ये दोनों. फिर ये हो गया सोमेटिक, efferent. यहाँ पे नियर टू सल्कस लिमिटन्स विसरल, तो विसरल एफरंट, विसरल सॉरी ये विसरल एफरंट और ये सोमेटिक एफरंट. अगेन विसरल, सोमेटिक, पीछे वाला एफरंट, आगे वाला ईफरंट. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स आप सीख लिए, सभी के आगे जनरल लगा दो, जी 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 जी. ठीक है, तो GSE, GVE, GSA, GVA. ओके,
So these are the four basic functional components. This is design of spinal cord. Same design will happen in our ब्रेन स्टेम. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एकदम सिंपल डिजाइन है, 4 कंपोनेंट हो गए. बट इन द मेड्यूला एंड अबव सेम स्टोरी. दिस इज न्यूरल ट्यूब, वेंट्रल बेसल लेमिना, डोर्सल एलार लेमिना. नाउ दिस इज मेड्यूला एंड हायर. ओके, सो तो इन द मेड्यूला दिस डोर्सल एलार लेमिना विल ओपन. ये डोर्सल एलार लेमिना इज ओपनिंग. ओके, बीच में से पूरा खुल गया, बुक की तरह, पन्नों की तरह. सो व्हेन दिस इज कवर्ड बाय शीट ऑफ वाइट मैटर, sheet of white matter which is covering lateral portions of opened alar lamina is called roof plate. So this is roof plate of developing brainstem. So roof plate will become your superior medullary velum and inferior medullary velum. चलिए अब इसका क्या करें. तो बेसल लेमिना एंड एलार लेमिना, आगे जो किया वही करना है. यहाँ पे नाम दो सल्कस लिमिटेंस, नियर टू सल्कस लिमिटेंस, विसरल इफरेंट, सोमेटिक इफरेंट, विसरल एफरेंट एंड सोमेटिक एफरेंट. तो इस डायग्राम के बाद आपको वो कंपोनेंट वाला डायग्राम लेना है. कौन सा? जो हमने कंपोनेंट में बहुत सालों पहले देखा था, ये वाला. दिस इज योर सल्कस लिमिटेंस, दिस इज रूफ प्लेट. सो सल्कस लिमिटेंस के आसपास यहाँ पे 2 बनाओ, यहाँ पे 2 बनाओ. ठीक है, फिर सब में एक एक एक्स्ट्रा घुसेगा. तो पहले 4 आने चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा बाद में. चलो और क्या करना है. अब एक और चेंज. जनरल स्टोरी अब ख़त्म हो गई. जनरल स्टोरी क्या थी? 3 जर्म लेयर्स, 3 न्यूरल ट्यूब लेयर्स, 2 लेमिना और उसमें 2-2 मिलके 4 कंपोनेंट. ये जनरल स्टोरी हो गई. अब स्पेशल स्टोरी आती है. स्पेशल में एलार लेमिना का मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, मोस्ट डोर्सल पार्ट और लेटरल पोर्शन ऑफ एलार लेमिना, यहाँ से एक टुकड़ा डिटैच होगा. सम न्यूरॉन्स ऑफ lateral most portion of alar lamina will migrate. They will migrate ventromedially, craniocaudally. दोनों चीज़ें ventromedially and craniocaudally means antero-inferiorly. Then they will migrate inside its lower part. So this migrated mantle layer from alar lamina is forming your olivary nucleus. ये कहाँ पे था? मेड्यूला का सेक्शन, वेंट्रल पोर्शन. ठीक है, 2 ओलिवरी के ग्रुप थे, एक इंफीरियर ओलिवरी, एक सुपीरियर ओलिवरी. इन दोनों के बीच में एक्सेसरी ओलिवरी. ठीक है, तो जो इंफीरियर ओलिवरी का ग्रुप है वो यहाँ से शुरू हुआ, फिर इसमें से सबका डिवीजन हो जाएगा. सो ओलिवरी न्यूक्लियाई इज फॉर्म्ड बाय डिटैचमेंट ऑफ मेंटल लेयर सेल्स फ्रॉम मोस्ट लेटरल पोर्शन ऑफ एलार लेमिना इन डेवलपिंग ब्रेन स्टेम. क्लियर? एक और टुकड़ा, इसका नाम है बल्बो पोंटाइन एक्सटेंशन. अब ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है. दिस इज सी, ये चारों चीज़ पहले देख लो. दिस इज योर
एलार लेमिना, दिस इज योर बेसल लेमिना, ओके। बीच में जो है दैट इज सल्कस लेमिटेंस। तो दिस इज मेंटल लेयर, दिस पिंक कलर। तो यहाँ पे मेंटल लेयर इस तरह से दिखाया है, तो ये पूरा खोल के उल्टा दिखाया है, ठीक है। दिस इज डोर्सल, दिस येलो पार्ट इज ऑन वेंट्रल साइड। येलो पार्ट रिप्रेजेंट्स मार्जिनल लेयर, पिंक पार्ट रिप्रेजेंट मेंटल लेयर, ओके। यहाँ पे वही चीज़ है, पिंक पार्ट इज ऑन डोर्सल साइड, तो ये पूरा खोल के नीचे से दिखाया है। सो दिस इज ऑन डोर्सल साइड, दिस इज ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है। ये येलो और ये येलो एक ही चीज़ है, पर काट के खोल के दिखाया है, इसलिए ये उल्टा दिख रहा है। तो ये समझने में ध्यान रखो। सेल्स ऑफ दिस, ये अपना एलार लेमिना, यहाँ से कुछ सेल हमने अलग कर दिए जिसने ओलिवरी न्यूक्लियाई बनाया, ठीक है। तो ये जो अलग किया है हमने, सेपरेशन फ्रॉम एलार लेमिना, ये पूरा जो पीस है, एक्सटेंशन फ्रॉम पोन्स टू मेड्यूला, इस ट्यूब का नाम है मेटेनकेफेलॉन, इस ट्यूब का नाम है माइलेनकेफेलॉन। दोनों कंटिन्यूअस है, याद करो न्यूरल ट्यूब। मेटेनकेफेलॉन इज क्रेनियल पार्ट, माइलेनकेफेलॉन इज कॉर्डल पार्ट। सो माइलेनकेफेलॉन, ये दोनों मिलके क्या बनाया, रोम्बेनकेफेलॉन। रिमेंबर रोम्बेनकेफेलॉन, ये पूरे का नाम है। cranial part of rhombencephalon is called metencephalon and caudal part of rhombencephalon is called myelencephalon। तो ये माइलेनकेफेलॉन में से हमें तीन चीज़ें बनानी है, कॉर्डल पार्ट में से स्पाइनल कॉर्ड एंड मेड्यूला, क्रेनियल पार्ट में से अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला, यहाँ से लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूला, और बीच में अपना सेरेबेलम। मेटेनकेफेलॉन में से कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ अकेला पोन्स बनेगा। So this is your developing pons and this is your developing upper part of medulla, lower part of medulla, और बीच में पीछे सेरेबेलम बनेगा। So अब स्टोरी क्या है, बल्बोपोंटाइन एक्सटेंशन, ये वर्ड है, ये पूरे डायग्राम का नाम है बल्बोपोंटाइन एक्सटेंशन। इट मीन्स ये cells of mental layer, alar lamina, when they detach, this detached portion, this phenomenon is called bulbopontine extension। शब्दों को समझिए, bulbo means pyramid of medulla, it is bulb shaped। ये अपना मेड्यूला है और इसमें आगे दो एलिवेशन है जिसका नाम है पिरामिड। सो पिरामिड इज having gray matter and white matter, right? White matter that is your corticospinal and corticonuclear fibers। ग्रे मैटर जो है वो आपका ओलिवरी न्यूक्लियाई और पोंटाइन न्यूक्लियाई हो गया। सो दिस ग्रे मैटर इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ मेटेनकेफेलॉन into myelencephalon is called bulbopontine extension। It will give rise to two things, one is olivary nucleus and another part is pyramid, bulbopontine extension, ठीक है। तो ये हो गई ग्रे मैटर की बात। और वाइट मैटर जो है वो ऊपर से मार्जिनल लेयर के जो भी एक्सोन आएंगे वो एक्सोन कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर लेके इसमें आएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अब इस एक्सटेंशन के दो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्रेनियल पार्ट, नीचे वाला पार्ट कॉर्डल पार्ट, ठीक है। क्रेनियल पार्ट ऑफ बल्बोपोंटाइन एक्सटेंशन एंड कॉर्डल पार्ट ऑफ बल्बोपोंटाइन एक्सटेंशन। तो ये वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे, जहाँ पे भी यूज़ होते हैं आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सो इफ़ वी आर डेवलपिंग मेड्यूला मीन्स मेड्यूला के दो पार्ट, अपर ओपन पार्ट, लोअर क्लोज पार्ट।
सो अपर सबसे पहले सल्कस लिमिटेंस लाओ, जनरल स्टोरी, वेंट्रल डोर्सल में डिवाइड कर दो, फिर क्रेनियल पार्ट, ओपन पार्ट, फिर कोडल पार्ट, क्लोज पार्ट, दोनों की अलग अलग स्टोरी। क्रेनियल ओपन पार्ट है, ये जो है ये दोनों में आएगा, रूफ प्लेट, ठीक है। रूफ प्लेट विल कंटिन्यू इन होल ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसमें मेड्यूला एंड पोन्स, इसका डोर्सल सरफेस आप याद करो, जिसमें भी वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल, उसकी रूफ में रूफ प्लेट विल कंटिन्यू। फिर हमने माइग्रेशन किया बल्बोपोंटाइन एक्सटेंशन का, और उसमें से हमने बनाया ओलिवरी न्यूक्लिया एंड पिरामिड। पिरामिड इसमें लिखा नहीं है, आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम और कंपोनेंट इसमें डालते हैं। तो ओरिजिनल 4 कंपोनेंट थे, जीएसई, जीवीई, जीवीए, जीएसए, ये 4 ओरिजिनल थे, ठीक है। अब बेसल लेमिना में बीच में एक कंपोनेंट ऐड हुआ, जो बाद में ऐड होता है उसे हम स्पेशियल बोलते हैं। तो ये हो गया स्पेशियल विसरल इफरंट विच इज़ एडेड लेटर ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। लोअर एनिमल में ये दो कंटिन्यू होंगे, और हायर एनिमल में स्पेशियल पीछे से ऐड होगा। यहाँ पे भी एक स्पेशियल घुस गया, तो पहले 4 थे, उसमें एक एक स्पेशियल डाल दो तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशियल विसरल इफरंट एंड स्पेशियल विसरल एफरंट, ये हमने डाल दिया। अब और एक स्पेशियल हम लास्ट में डालेंगे, ये एरिया बड़ा स्पेशियल होता है, VVIP जिसे हम बोलते हैं, दैट इज स्पेशियल सोमेटिक एफरंट, जो सबसे लास्ट में अलग से अपनी जगह बनाएगा। ये तो हमारा आपको पता है कौन है, दिस इज योर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर न्यूक्लियस, काफ़ी स्पेशल VVIP। तो ये चारों कंपोनेंट आपको क्लियर हो गए, फिर चारों में एक एक स्पेशियल क्लियर हो गया, और सबसे लास्ट में एक और स्पेशियल। तो 4 + 2 + 1, सबसे पहले 4, फिर 2 स्पेशियल इन बिटवीन एंड 1 मोर स्पेशियल ऑन द मोस्ट लेटरल साइड, ठीक है। दिस इज क्रोनोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो इसको हमने, ये आपका बेसल लेमिना है, ये आपका LR लेमिना है, एंड दिस इज योर रूफ प्लेट। तो बेसल लेमिना और LR लेमिना के बीच में हमने सल्कस लिमिटेंस रखा। सो ये टेबल आप समझिए, यहाँ पे आपको लिखना है सल्कस लिमिटेंस, मीडियल टू सल्कस लिमिटेंस, दिस इज योर बेसल लेमिना, 3 कॉलम, यहाँ पे GSE लिखना है। लेटरल टू सल्कस लिमिटेंस LR लेमिना, इसमें 4 कॉलम्स, ठीक है। 4 तो कहने की है, पर पहली 2 एक साथ होती है, GVA एंड SVA, इट इज़ डिस्क्राइब सेपरेटली बट एनाटॉमिकली दे आर टुगेदर। तो ये क्लियर हो गया, मीडियल टू सल्कस लिमिटेंस, बेसल लेमिना, 3 कॉलम, लेटरल टू सल्कस लिमिटेंस LR लेमिना, 4 कॉलम्स, ठीक है। तो 3 + 3 हो गई। अब इसका हम 3 हिस्से करेंगे, क्रेनियल मोस्ट, मिड ब्रेन। सी दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ट्यूब। अगर इस ट्यूब को आप क्रेनियली ले जाओ तो क्रेनियली मिड ब्रेन होता है, बीच में पोन्स होता है, और नीचे होता है मेड्यूला। और मेड्यूला के भी 2 पार्ट, अपर ओपन पार्ट एंड लोअर क्लोज पार्ट। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है अपर ओपन पार्ट एंड लोअर क्लोज पार्ट। नाउ रिमेंबर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये अपने एम्ब्रियो का ग्रोथ के साथ मैचिंग कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। सोमेटोमोटर,
ब्रेंकियोमोटर, विसरोमोटर, सिक्रिटोमोटर, सेंसरी, अगेन सोमेटोमोटर, ब्रेंकियोमोटर और विसरोमोटर, सिक्रिटोमोटर, जनरल एफरेंट, स्पेशियल एफरेंट। ठीक है, तो these all are efferents or sensory and these all are motor, सोमेटोमोटर, विसरोमोटर, सिक्रिटोमोटर। इन वर्ड्स को पकड़ के हमें क्रेनियल नर्व्स के नाम याद करने हैं। तो ऊपर से नीचे जाओ, नंबर बढ़ाते जाओ, और जो सिमिलर नाम है जो हमने साथ में देखे थे 7, 9, 10, 7, 9, 10 हमेशा एक साथ चलते हैं। यहाँ पे देखो 7, 9, 10 यहाँ काट के दिखाया, इसका मतलब ये अलग नहीं है, ये पूरी सिंगल कॉलम होती है। जैसे ये है, दिस होल इज अ लार्ज सिंगल कॉलम। ठीक है, इसके सभी के न्यूरॉन के सेल बॉडी एक ही कॉलम में होते हैं। हमने समझने के लिए इनको अलग ड्रॉ किया होता है। सो 7, 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 3 बार हमने 7, 9, 10 डाल दिया। फिर इस बड़े को हमने 5 नाम दे दिया, इस बड़े को हमने 8 नाम दे दिया। सो 7, 9, 10 3 बार, 5th कंपोनेंट एक बार, 8th कंपोनेंट एक बार, और बचा कुचा डालते जाओ। 3, 4, 6 एंड 12। 3, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये 6 एंड दिस इज 12। तो 4, 6, 12 is limited to this column and 3 is expanding like this। ये पूरा 3 है। ठीक है, ओके। सो ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, और इसका यहाँ से समझ सकते हो तो यहाँ से करो, ऐसे ही आता है तो ऐसे करो। पर ये पूरा डायग्राम हर वक्त हमें एकदम पोपट की तरह रटा होना चाहिए। कुछ भी बात निकले, यहाँ से आपके वाइवा भी निकलेंगे, यहाँ से आपकी काफ़ी शॉर्ट नोट्स भी बनेगी, एम्ब्रियो भी बनेगा। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू मग अप दिस डायग्राम लाइक एनीथिंग। ठीक है, जैसे वो पहले बोलते थे ना, नींद में से जगाए और पूछे तो फटफट आना चाहिए, ऐसी ये चीज़ है। सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर। वी विल कंटिन्यू विथ बोन्स एंड मिड ब्रेन एंड अदर पार्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर। पर इससे पहले आपको ये पूरा टेबल क्लियर चाहिए, ठीक है, वरना बात बनेगी नहीं। ओके, I am here for 2-3 minutes. If you have any question, you directly post in the group, in a WhatsApp group. I am opening our WhatsApp group. Thank you.